بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کی انگلش کے ساتھ میں لیسن ایف جو ایک پوئم ہے اس کے شارٹ کویسچنز اور آنسرز ڈسکس کریں گے۔ اس پوئم میں کال آؤٹس کے 2 کویسچنز ہیں اور ان کویسچن آنسرز میں نے پوئم کا وہ ریلیونٹ پارٹ لکھا ہے جہاں سے ہم نے آنسر نکالا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو لکھ نہیں دینا، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ آنسر کہاں سے آیا ہے۔ تو کال آؤٹس کا پہلا کویسچن ہے، ہاؤ ول یو ہینڈل دی سچویشن اف یو فیس فیلئر ان یور لائف؟ اگر آپ زندگی میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو صورتحال سے کو کیسے ہینڈل کریں گے، کیسے اسے نپٹیں گے؟ آئی ول اسٹے کام اینڈ ناٹ لوز ہوپ۔ آپ شیل بھی لکھ سکتے ہیں، آئی کے ساتھ نارملی کہا جاتا ہے کہ شیل لکھا جانا چاہیے، لیکن ماڈرن انگلش میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہر ایک کے ساتھ شیل ول لکھیں۔ شیل جو ہے صرف سوالیہ جملہ بنانے کے لیے استعمال کریں، وہ بھی آئی اور وی کے لیے۔ یہ ماڈرن استعمال ہے اس کا، تو آئی ول لکھنا ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آئی ول اسٹے کام اینڈ ناٹ لوز ہوپ، میں پرسکون رہوں گا اور حوصلہ نہیں ہاروں گا، امید نہیں ہاروں گا۔ I will learn from my mistakes and try again with more efforts. میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں گا اور پھر دوبارہ بہتر کوشش کروں گا، زیادہ ایفرٹ کے ساتھ کوشش کروں گا۔ Question 2. How will you celebrate success in your life? آپ زندگی میں کامیابی کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ I will be thankful and remain humble. میں شکر گزار رہوں گا اور عاجز رہوں گا، اکڑنا نہیں شروع کر دوں گا۔ I'll share my happiness with family and friends. میں دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اپنی خوشی بانٹوں گا۔ and without becoming proud، فخر کرنے کے بغیر، تکبر کیے بغیر۔ تو یہاں پہ یہ آنسر اس طرح سے ہی لیا گیا، اور walk with kings not lose the common touch، کہ اگر میرا بادشاہوں کے ساتھ چلنا ہو جائے تو کامن ٹچ نہیں چھوڑنا، تکبر نہیں آ جائے گا، عام لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا۔ تو وہ یہاں پہ اس کا مینشن کر دیا ہے۔ ایکسرسائز کے 7 کویسچنز ہیں، ان میں سے پہلا ہے، اکارڈنگ ٹو دی پوئٹ ہاؤ شوڈ ون رسپونڈ ٹو کریٹیسزم اینڈ بلیم؟ پوئٹ روڈیارڈ کپلنگ کے مطابق کس طرح سے جواب دینا چاہیے تنقید کا اور الزامات کا؟ One should stay calm and not lose self-control when criticized or blamed. ہمیں پرسکون رہنا چاہیے اور سیلف کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے جب لوگ تنقید کریں یا الزام لگائیں۔ It's better to face such situations with patience and understanding. بہتر ہے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کیا جائے صبر کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ۔ Question 2. What quality does the poem emphasize in handling doubt and self-trust? Doubt، شک، شبے اور شک کو اور خود پر اعتبار کو، یعنی اپنے کانفیڈنس کو، سیلف ٹرسٹ، خود پر اعتبار کو ہینڈل کرتے ہوئے کس چیز کے اوپر، کون سی خوبی کے اوپر پوئم جو ہے وہ ایمفیسائز کرتی ہے، زور دیتی ہے؟ یعنی پوئم کس چیز کے اوپر زور دیتی ہے کہ آپ نے جب ڈاؤٹ میں ہونا ہے اور سیلف ٹرسٹ میں کے اوپر آپ کا شک کیا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ The poem advises trusting oneself even when others doubt you. تو جو نظم ہے وہ نصیحت کرتی ہے کہ خود پر اعتبار کرنا چاہیے تب بھی جب دوسرے لوگ تم پر شک کر رہے ہوں۔ At the same time, you should understand that others may also have their reasons for doubting. اور ساتھ ہی یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ لوگوں کے شک کرنے کی وجوہات ٹھیک ہو سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نلیفائی کرنا شروع کر دیں کہ ان کی بات ہی نہ سمجھیں، سنیں ہی نہ، کہ وہ اگر ڈاؤٹ کر رہے ہیں تو اس ڈاؤٹ کو آپ نلیفائی نہیں کریں، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں، لیکن اپنا جو کانفیڈنس ہے، اپنا سیلف ٹرسٹ ہے، اس کو مینٹین رکھیں۔
पोएट कहता है जी, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर सारे ही इंसान, सारे आदमी तुम पर शक करना शुरू कर दें और फिर भी तुम अपने आप पर एतबार कर सको, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उनके शक करने की इजाज़त दे दो। समझ लो कि ठीक है, वो शक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या उनका हक बनता है, वो कर सकते हैं, इस तरह की चीज़, लेकिन अपना सेल्फ ट्रस्ट जो है वो नहीं छोड़ना, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना। क्वेश्चन 3, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस? ख्वाबों और मकासद के बारे में नज़म क्या हमें पैगाम देती है, क्या नसीहत करती है? ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट, ख्वाब अहम हैं, बट दे शुड नॉट कंट्रोल योर लाइफ, लेकिन उन्हें ये नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करें, कि आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाए। यू शुड वर्क टूवर्ड्स दैम विद बैलेंस एंड विजडम, आपको ख्वाबों के हसूल के लिए तवाज़न और दानाई के साथ काम करना चाहिए। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तो ये वो खूबियाँ हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं कि अगर आप ख्वाब देख सकते हैं और लेकिन ख्वाबों को अपना मालिक ना बना लें, यानी ख्वाब आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करना शुरू कर दें। और अगर आप सोच सकते हैं तो ऐसा ना हो कि सोचें जो हैं वो आपका मकसद बन जाए। ये भी एक अच्छे इंसान की खूबी है कि वो सोच तो सकता है लेकिन सोचों को अपना मकसद नहीं बना लेता। इसी तरह से ख्वाब तो देखता है लेकिन ख्वाबों को के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता। Question 4, how should a person handle twisted truths and personal losses? कि ट्विस्टेड ट्रुथ, ऐसी सच्चाइयाँ जिनको तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और पर्सनल ज़ाती नुकसान को कैसे हैंडल करना चाहिए। ए पर्सन शुड नॉट लूज करेज व्हेन देयर वर्ड्स आर ट्विस्टेड या मिसयूज्ड, एक आदमी को हौसला नहीं हारना चाहिए जब उनकी कही हुई बातें गलत तरीके से इस्तेमाल हों, जिन्हें ट्विस्टिंग कहते हैं। They should rebuild what is lost even if it is very difficult. उन्हें जो नुकसान हो गया उसको दोबारा पूरा करना चाहिए, दोबारा तामीर करना चाहिए, चाहे ये बहुत ही मुश्किल हो जाए। If you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make it trap for fools, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो सच आपने बोले थे वो बदमाशों ने ट्विस्ट करके बेवकूफ़ों को फंसाने की कोशिश की है या फंसा रहे हैं, आपके लफ्ज़ों को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, या फिर उन चीज़ों को देखेंगे जिनके लिए आपने ज़िंदगी गुजार दी ब्रोकन, टूटा हुआ, यानी आपके पर्सनल लॉस हो गया, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद बर्न आउट टूल्स, और फिर झुक जाओ, झुक कर उन्हें दोबारा बनाना शुरू कर दो, चाहे हथियार जो हैं, औजार जो हैं वो वर्न आउट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, सस्ता हाल हो चुके हैं। तो वही बात यहाँ पे की है कि आदमी को हौसला नहीं हारना चाहिए अगर लफ्ज़ों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपना नुकसान जो है उसको रीबिल्ड करना चाहिए, दोबारा बना देना चाहिए, चाहे बहुत ही मुश्किल हो जाए। Question 5, what does the poem suggest about resilience and rebuilding after setbacks? रिजिलियंस साबित कदमी तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि नाकामी के बाद दोबारा मुकाबले के लिए खड़ा हो जाना, गिरने के बाद उठ खड़ा होना, ये रिजिलियंस है। रिजिलियंस के बारे में आप नज़म क्या सजेस्ट करती है, और रीबिल्डिंग आफ्टर सेटबैक्स, और नुकसान के बाद दोबारा तमीर नौ के ऊपर क्या बात करती है? इट सजेस्ट फेसिंग लॉस ब्रेवली, ये सजेस्ट करती है, मशवरा देती है कि नुकसान का बहादुरी से सामना करें, एंड स्टार्टिंग अगेन विदाउट कंप्लेंट, और शिकायत किए बगैर दोबारा शुरू हो जाएं। रिजिलियंस है ये, नुकसान हुआ है लेकिन उठ के खड़े हो जाए, दोबारा शुरू हो जाए। ट्रू स्ट्रेंथ इज शोन इन कंटिन्यूइंग आफ्टर फेलियर, इंसान की असली स्ट्रेंथ उस वक्त नजर आती है जब वो फेलियर के बाद कंटिन्यू करता है। 6th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स? नज़म के मुताबिक मुश्किल हालात में किसी को कैसे परसिस्ट करना चाहिए, साबित कदम कैसे रहना चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए, साबित कदम रहना। One should keep going even when tired
or weak. इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कमज़ोर हो चुके हैं या थक चुके हैं. The willpower to continue is more important than physical strength. कामयाब जारी रखने की का हौसला, जो विल पावर है, वो ज़्यादा अहम है जिस्मानी ताकत से. जिस्मानी ताकत अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा विल पावर चाहिए कि आपके अंदर काम करने का जज्बा हो, जारी रखने का जज्बा हो. Question 7. What is the message of the poem regarding integrity and humility in life? Integrity दयानतदारी और humility आजिज़ी. ये इन दोनों चीज़ों के बारे में नज़म का क्या मैसेज है? The poem teaches to keep one's character pure in all company. नज़म बताती है, सिखाती है कि अपना किरदार ठीक रखें हर तरह की सोहबत में, हर तरह के लोगों में आप अपना किरदार ठीक रखें. बुरों की कंपनी में अगर हो बैठ भी जाए तो बुरे नहीं हो जाना चाहिए, किरदार आपका ठीक रहना चाहिए. अच्छों के साथ आपका किरदार अच्छा हो जाएगा, बुरों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए. It also advises being humble with both ordinary people and those in high positions. और ये भी नसीहत करती है नज़म के आप आम लोगों के साथ बैठकर आप आजिज़ी महसूस करें, एंड दोज इन हाई पोजीशन, और बड़े ओहदों वालों के साथ बैठकर भी आजिज़ी ही महसूस करें. If you can talk with crowds and keep your virtue, अगर आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं और अपने किरदार को बरकरार रख सकते हैं. और walk with kings, या फिर बादशाहों के साथ चलते हैं, nor lose the common touch, तो आप अपना आम लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं तोड़ते, तो फिर आप एक असल इंसान है. पोएम की आखिरी लाइन्स ये बताती हैं. ये इफ़ वाले कितनी ज़्यादा कंडीशंस हैं, 4 स्टैंजाज़ हैं, 4 स्टैंजाज़ हैं, और आखिर में 2 लाइन्स में वो बताता है कि अगर ये सारी खूबियाँ किसी भी आदमी में हैं तो वो असल में इंसान है, असल में वो मर्द है.